નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો યુટીસી ન્યૂઝ। આજે વડોદરાની મધ્યમાં આવેલો માંડવી દરવાજો જાણે કે પોતે જ પોતાની વેદના વ્યક્ત કરી રહ્યો હોય। હું માંડવી દરવાજો બોલી રહ્યો છું। આ માંડવી દરવાજો જેને વડોદરાને એક ઓળખ આપી। જ્યારે આપણે વડોદરાની વાત કરીએ ત્યારે આપણે માંડવીના દરવાજાની પણ વાત કરતા હોઈએ છીએ અને આ જ દરવાજો એક વડોદરાની જ્યારે ઓળખ હોય ત્યારે એની જ્યારે દુર્દશા થાય તેના જ જ્યારે કાંકડા ખરતા હોય ત્યારે ખૂબ જ દુઃખદની વાત છે। વડોદરામાં જે સત્તાધીશો છે, જે વર્ષોથી વડોદરા પર શાસન કરે છે, તેમને તો કંઈ જ પડી નથી એવું લાગી પણ રહ્યું છે। ચાર દિવસ થઈ ગયા અને આટલી મોટી સમસ્યા હોવા છતાં આજે ગાંધીનગરથી જ્યારે અધિકારી આવ્યા ત્યારે ધારાસભ્ય પણ ત્યાં દોડતા થયા અને સાંસદ પણ દોડતા થયા। કોંગ્રેસે પણ આ તકનો લાભ લઈને એક આંદોલન ઊભું કર્યું। કોંગ્રેસે જ્યારે આંદોલન ઊભું કર્યું ત્યારે કોંગ્રેસના નેતાઓને ડિટેઇન કરી લેવામાં આવ્યા। વડોદરા શહેરમાં મધ્યમાં આવેલા આ માંડવી દરવાજાની ઓળખ અને દેખરેખ કરવા માટે ખાસ માવજત રાખવી પડે, પરંતુ આ જે રીતેનું એની દેખરેખ થઈ રહી છે, લોકોની ત્યાં અવર જવર થઈ રહી છે। ઘણી વખત કહેવામાં આવ્યું છે કે માંડવી દરવાજો ખૂબ જ જૂનો અને ઐતિહાસિક છે, તો એ જગ્યા પર લાઉડસ્પીકર ના વગાડવામાં આવે, ફટાકડા ના ફોડવામાં આવે, ત્યાં વાહનોની અવર જવર પણ ઓછી કરવી પડે, પરંતુ 24 કલાક ત્યાં વાહનોની અવર જવર થાય છે। કોઈ પણ પ્રસંગ હોય, ચાહે રથયાત્રા હોય કે ચાહે ગણેશ વિસર્જન હોય કે પછી શિવજી કી સવારી હોય, માંડવીની આજુબાજુ સૌથી મોટા લાઉડસ્પીકર વાગતા હોય છે। સૌથી પહેલાં લાઉડસ્પીકરોને બંધ કરવા પડે, ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારના શોરને બંધ કરવા પડે, આતિશબાજી બંધ કરવી પડે અને સાથે સાથે ત્યાં વાહનોની સંખ્યા પણ ઓછી કરવી પડે। જો આપણે આપણો વિરાસતને જાળવવી હોય ને આટલી સારી ઇમારતની આપણે કાળજી રાખવી હોય તો પછી આપણે પણ આનું કદમ વધાવવો પડશે અને ઘણી બધી જે ભૂલો આપણે અત્યાર સુધીમાં કરતા આવ્યા છે તે આપણે ભૂલોને સુધારવી પડશે। क्या दिख रहा है? अभी फिलहाल तो यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा फ्रेजाइल कंडीशन में है। इसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि अभी प्लान ऑफ एक्शन नेक्स्ट क्या करना है। एक बार कलेक्टर से मिलके इसका जल्द से जल्द हल लाने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो यही है अभी तो फिलहाल तो हम अभी इसकी कंडीशन देखने आए हैं और इसी को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो एक बार अथॉरिटी से बात करके इसका सोल्यूशन जल्द से जल्द लाएंगे। क्या लगा आपको कंडीशन? फ्रेजाइल है, काफ़ी नाजुक है, जितना हो सके कम मूवमेंट रहे वो रहे, क्योंकि अदरवाइज लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए हुआ होगा, अंदाजा लगाया होगा। इस चीज़ तो पुराना है, इसका टाइम टू टाइम इसका मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वही चीज़ें अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्दर कमेंट्स कर पाएंगे। तो थैंक यू। मैडम क्या उससे बच जाए? ये अभी सिर्फ सपोर्ट करने के लिए कि किसी के ऊपर अभी गिरे ना, ये अभी टेम्परेरी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन के लिए डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फर्दर डील। हाँ जी, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जितना मूवमेंट फुटफॉल रहेगा उतना और उसके लिए लोगों के लिए खतरा रहेगा। हाल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तरफ गुजरातना डेप्यूटी डायरेक्टर श्री આપણે આવ્યા છે ગ્રેસ મેડમ, ડૉક્ટર ગ્રેસ મેડમ, અને તેમને આની ચકાસણી કરી છે। હમણાં તો એમને નજરથી ચકાસણી કરી છે, એના સાયન્ટિફિક ચકાસણી પછી થશે। હમણાં કલેક્ટર સાહેબ સાથે એમની મિટિંગ છે, અમારા કોર્પોરેશનના અધિકારીથી પણ એમની સાથે જવાના છે અને પછી કલેક્ટર સાહેબ આર્कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाના જે ડાયરેક્ટર છે શર્માજી, એમની સાથે વાત કરીને મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાથે વાતચીત કરીને આગળની એક્શનનો પ્લાન બનાવશે। મેડમનું કહેવું છે કે માંડવીની અંદર જે અવર જવર છે બંધ કરવી જોઈએ, તો બંધ કરાશે? એટલે એ તો સરકાર જે પ્રમાણે કહેશે તો કરવું જ પડશે। બિલ્ડિંગને બચાવવું હશે તો જે ગાઈડલાઈન હશે ડિપાર્ટમેન્ટની આર્कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाની એ દિશામાં તમને શું લાગ્યું રેગ્યુલર મેન્ટેનન્સ ના થયું એના માટે? ના એવું આમાં શું છે કે 1800 વર્ષ જૂનું જ્યારે સ્ટ્રક્ચર બને ત્યારે આપણે થતું હોય છે, પણ આના જે કારણો છે એકવાર સાયન્ટિફિકલી ચેક થયા પછી જ હજારોની સંખ્યામાં મંદિરે ભક્તો આવતા હોય છે, તો વહેલી તકે બંધ કરવાનું આપણને લાગે છે? કારણ કે એમને એક્સપર્ટે કહ્યું કે બંધ કરવું જરૂરી છે। એટલે મેં એ જ કહ્યું કે હમણાં જે મેડમ આવ્યા છે તે આ વિષયના એક્સપર્ટ છે, એટલે ગાંધીનગરથી ખાસ એ આવ્યા છે। હમણાં કલેક્ટર સાહેબ સાથે વાતચીત કરીને કલેક્ટર સાહેબ ડાયરેક્ટર સાહેબ સાથે છે, કારણ કે મેડમ પોતે ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર, તો એ પણ ત્યાં સાહેબ સાથે મિટિંગ કરીને એમના મેન જે સાહેબ છે શર્મા સાહેબ, એમની જોડે વાતચીત કરીને પછી મ્યુનિસિપલ કમિશનરશ્રી અને કલેક્ટરશ્રી દ્વારા એકત્ર થઈને એ લોકો નિર્ણય લેશે અને એ પ્રમાણે કામ કરશે। इस तरह की गंभीरता को देखते हुए गांधीनगर टीम आई है, सांसद भी आ गए, विस्तार के धारासभ्य भी आए, क्या कहेंगे आप? आज हमारे प्रण का तीसरा दिन है तप का। तीसरे दिन पे यहाँ के विरोध पक्ष के लोग भी आए,
सत्ता पक्ष के भी लोग आए, बड़ौदा के भक्तजन लोग भी आए, जिन्होंने यहाँ बैठ के भगवान के हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र के पाठ किए। यही के विस्तार के लोग ये बात को जागरूक करने के लिए ढोल ताशा वाले लोग पण आए। पिछले 8 सालों से हमारी ये रजूआत थी कि 4 दरवाज़ा और न्याय मंदिर हेरिटेज को बहुत नुकसान हो रहा है। आज तक वहाँ तो कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन जनवरी 2025 में ये पिलरों में जब दरारें आई, तब मीडिया के माध्यम से हमने प्रशासन को बताने की कोशिश की कि महानगर के कमिश्नर श्री, आप देखो ये माइनर तिराड़े नहीं है, कभी मेजर होगी और बड़ा अकस्मात होगी। उसके बाद 2 महीनों तक कुछ काम नहीं किया। मार्च महीने में काम शुरू किया तो ये सब गडर लगा दिए। गडर लगाने की वजह से क्या हुआ, जो तिराड़े नहीं थी वो भी ज़्यादा डेवलप हो गई, यानी ये प्रॉपर्टी ज़्यादा डैमेज हो गई। और जो मेन पिलर पे काम करने का था वो पिलर तो और ना और टूटना लगा। तभी ऐसा है कि आधा पिलर नीचे से टूटा हुआ है और कुछ ना कुछ गिरता रहता है, इसलिए इन्होंने पर्दा लगा दिया तो कोई देखे नहीं और कुछ सोचे नहीं। तो महानगर पालिका के कमिश्नर को मेरी यही एक बात है कि ये सर सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी है, संस्कारी नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है। ये सब जो धरोहर उन्होंने दी है उसको अब सरकार को निभानी है, इसका मेंटेन करना है और इसके कस्टोडियन कमिश्नर की ओर पे आप हो। तो कमिश्नर हो तो आपको ये सब हेरिटेज को संभाल के रखना है, क्योंकि अपने जो वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी है वो भी कह रहे हैं कि अपने हेरिटेज वारसा को संभालो। तो ये वारसा अब ख़त्म होने लगा है। तो ये पिलर की रजूआत हमने 3 दिन से मीडिया के माध्यम से कर रहे थे। उसके लिए आज सांसद मिलने आए हेमंत भाई जोशी कि भाई हम इसके लिए रिपोर्ट तैयार करा रहे हैं, इसके लिए एक्सपर्ट को बता रहे हैं किस तरह से काम होगा। उन्होंने ऐसा मेरे को दिलासा दिया है, लेकिन ये तो हम दिल के दजे हुए आदमी हैं, तब ये पैरों में चप्पल पहनने के छोड़े। 8 साल से ये सब चीज़ों के लिए बता रहे हैं, आज वो नहीं हुई तो 2 दिन में ये कैसे हो जाएगा। 8 साल से कोई हेरिटेज एक्सपर्ट नहीं मिला। आज बड़ौदा में बहुत सारे हेरिटेज एक्सपर्ट है, वो यहाँ आके गए, उन्होंने ऐसा बताया कि हम हमारी रिपोर्ट रखते हैं, देते हैं, लेकिन हमारी रिपोर्ट दब जाती है, हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये से अपने ही शहर में हेरिटेज एक्सपर्ट है, उसकी सलाह लेके जल्दी से काम करवाओ। ये जो इमारत का पिलर जो गिर जाएगा, तो यहाँ धार्मिक आस्थाएं है, माता जी का मंदिर है, बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों के यहाँ से आने जाने का है, तो कुछ अकस्मात हो जाएगा, जान हानि हो जाएगी तो बड़ौदा महानगर पालिका पे बहुत बड़ी नामोशी आएगी। तो हम बड़ौदा महानगर के वेल विशर है, इसलिए मीडिया के माध्यम से उनको बता रहे कि ये काम करो और ये काम करके ये मैटर सॉल्व करो। लेकिन ये मैटर और ना और उझलती जाती है, क्यों वो पता नहीं चलता है। आपके शहर के बीचों बीच जो ये हाल है, हाँ। मांडवी दरवाजा को जो भी अधिकारी है, काउंसिलर है, नज़रअंदाज कर रहे हैं। सही पूरा शहर की क्या परिस्थिति होगी? सही बात है। आज एक आम आदमी को बोलने की कब ज़रूरत पड़ती है, जब अपने विस्तार के कॉरपोरेटर धारासभ्य उस पर ध्यान नहीं देते, तब इस तरह बोलने की ज़रूरत पड़ती है। जो ऐसा नहीं होता तो हमें बोलने की क्या ज़रूरत है। आपके साथ साथ कांग्रेस भी जुड़ी थी, वो पुलिस पकड़ के ले गई। मैं अभी भाजपा कांग्रेस नहीं बोलूँगा, बड़ौदा की जागरूक नागरिक मेरे साथ जुड़ रही है, वो कोई ना कोई होद्दे पे है, पुलिस के द्वारा उनकी धरपकड़ की तो गई। मैं वही बोलूँगा कि ये तब में हेरिटेज वारसा की सुरक्षा के लिए कोई भी बड़ौदा का आम आदमी बोलने आए तो उसको बोलने दो। लोकशाही में आदमी को बोलने की इजाज़त है, उसको बोलने से रोक नहीं सकते हम। पुलिस की कामगिरी को किस नज़र से देखते हैं? मैं पुलिस कमिश्नर को यही कहूँगा कि जो कोई भी रजूआत कर रहा है वो शांति से कर रहा है तो उसको करने दो, और कोई अपने नियमों के उल्लंघन के बात करता है तो उसके लिए आप कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन मांडवी में शांति से खड़े रहकर वो प्ले कार्ड लेके खड़े थे। आपको लगता है कि मांडवी की कामगिरी को कामगिरी की नज़र से देखा जाए, ना ही पॉलिटिक्स इसमें लिए? मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ, कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। हमारा परिवार 250 साल से मांडवी विस्तार में रह रहा है, हमारी 7 पीढ़ी हो गई यहाँ मंदिर में सेवा करते करते। तो ये हमारा एक घर है, धरोहर, क्योंकि हम सब
सुबह उठते हैं तब मांडवी देखते हैं, सो जाते हैं तब मांडवी देखते हैं। इसलिए हमारे घर में कुछ होता है तो दर्द हमको ही होता है। तो आपने क्या बताया? पॉलिटिक्स खेली जा रही है। मैं ऐसा बोलूँगा, पॉलिटिक्स होना चाहिए लेकिन डेवलपमेंट का होना चाहिए और अच्छे कामों के लिए होना चाहिए और शहर के विकास के लिए होना चाहिए, नहीं कि काम रुक जाए उसके लिए पॉलिटिक्स होना चाहिए। गांधीनगर से जो अधिकारी आई थी उन्होंने ऐसा कहा है कि यहाँ पे अवर जवर बंद किया जाना चाहिए। अभी ऐसा ही होगा क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ भी प्रजा की ओर से बताने जागरूक करने को आता है तो वहाँ पब्लिक को आने से रोका जाएगा। आज हम तप कर रहे हैं तो कई लोग हमसे जुड़ेंगे और वो लोग यहाँ ना आए और हम हमारा तप छोड़ दें, ऐसा हमको लगता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि जब तक मांडवी का काम ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं मांडवी के नीचे आऊँगा और ऐसे ही खड़ा रहूँगा। जो आपको लगता है कि ये धरोहर ठीक नहीं है तो 4 दरवाज़ा नो एंट्री कर दीजिए। 4 दरवाज़ा में जब राजकीय और बहुत सारे प्रोग्रामों में डीजे बज रहे उसको पहले बंद कर दीजिए। उसकी ज़रूरत पहले से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी है कि डीजे के वाइब्रेशन से ये सब प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी 4 दरवाज़ा, सेंट्रल लाइब्रेरी भी 200 साल पुरानी है, विठलनाथ जी मंदिर पुराना है, रणछोड़ राय जी मंदिर पुराना है, जुमा मस्जिद पुरानी है। ये सब प्रॉपर्टी को डीजे की वजह से बंद है। तो पहले ये बंद कीजिए, 4 दरवाजा में ट्रैफिक बंद कीजिए, बाद में यहाँ खड़े रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पब्लिक आएगी ही नहीं। धन्यवाद। चल रहा है यहाँ पे कामगिरी, उसकी क्या कैसा लगता है परिसर? गुजरात का बड़ौदा शहर संस्कारी नगरी, धार्मिक नगरी और ऐतिहासिक नगरी, राजा गायकवाड़ की नगरी। और देखने जाए तो यहाँ बहुत सारी ऐसी धरोहर है, ऐसी इमारतें हैं, बहुत पुरानी इमारत है। उसमें एक इमारत है मांडवी जो 8-9 साल से थोड़ा थोड़ा जर्जरित होता था। उसकी रजूआत महाराज ने, हमने सबने की, लेकिन बहरे कान पे कोई आवाज़ जा नहीं रही थी। हाल में मांडवी की जो जर्जरित बीम था वो थोड़ा गिर गया और रात को ज़्यादा गिरा, तभी बड़ौदा शहर संस्कारी नगरी में महाराज को तप करना पड़ रहा है और खुले पग नंगे पैर उनको रहना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है क्योंकि 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, 30 साल से हिंदुत्व की बात हो रही है और ये मांडवी जो मंदिर माता जी का मंदिर भी है, तो कहीं न कहीं ऐतिहासिक धरोहर बचाने के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ऐतिहासिक धरोहर बचाने की बात कर रहे हैं। तो बड़ौदा शहर में 30 साल से शासन दिया है, तो 30 साल से कहाँ गए धारासभ्य, 30 साल से कहाँ गए सांसद, 30 साल से मेयर चुने गए, चेयरमैन चुने गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया और 9 साल से कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। आज महाराज ने जब तब शुरू किया और दूसरा तीसरा दिन आज कांग्रेस भी आ गई, कांग्रेस ने भी आंदोलन किया, तभी आज कहीं न कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद आए, धारासभ्य आए और अभी उन्होंने बात कही हम कुछ कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी तो एक ही मांग है, बड़ौदा से संस्कारी नगरी में जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो भी कुछ हो रहा है वो ढह रहा है, उसको रिपेयरिंग किया जाए और जो पुरानी इमारत थे ऐसे ही इमारत रखी जाए। यहाँ देखने जाए तो लोखंड के जो बीम लगाए गए उसकी वजह से ज़्यादा क्रैक हो रहा है। तो कहीं न कहीं धारासभ्य देख ले, सांसद देख ले और जो भी यहाँ देखने आए तो उन्हें भी हमारी मांग है कि ऐतिहासिक धरोहर है और प्रधानमंत्री का भी सपना है और प्रधानमंत्री की एक कर्म भूमि है और यहीं पे कुछ न कुछ हो रहा है। तो वडोदरा शहर के मेयर और चेयरमैन और कमिश्नर से हमारी विनती है कि यह धरोहर बचाई जाए।